Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our presentation topic is Microsoft Office PowerPoint. Presentation is submitted to Professor Zishan Yusuf, presented by group number 6. Our group leader is Ruhma. Group members are Harim Fatma, Hadia, Farah, Mahnoor, Zahira Batul and Chashman. Basically, the topics assigned to our group are Introduction to PowerPoint, Presentation, Creating a new blank presentation, Presentation type, Different view icons, New, Outline, Slide and Slideshow. Introduction to PowerPoint. Microsoft Office PowerPoint is a presentation program created by Robert Gaskins and Dennis Austin. What is PowerPoint? Microsoft Office PowerPoint is an application for making graphical presentations, thus adding a visual aspect to our data, enhancing its concepts, and leading to an easier communication. The software offers various features like customizing color schemes, adding graphics, images, and animations, etc. पावर पॉइंट हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं ताकि हमारी कम्युनिकेशन में बहुत आसानी हो जाए। इस कम्युनिकेशन में आसानी इस तरह होती है कि हम उसके अंदर अपनी इमेजेस या ग्राफिक्स वगैरह ऐड करते हैं ताकि हमारी ऑडियंस को ज़्यादा अच्छी तरह वो समझ आ सके। What is a presentation? A presentation is a means of communication that can be adapted to various speaking situations, such as talking to a group or addressing a meeting, etc. प्रेजेंटेशन एक कम्युनिकेशन का ऐसा जरिया है जिसमें आप अपना कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक अपनी ऑडियंस को डिलीवर करते हैं उसके फैक्ट्स की बेस पे। Slide. A slide is a single page of presentation. Collectively, a group of slides is known as a slide deck. Slideshow. A slideshow is an exposition of the series of slides or images in an electronic screen or in a projection screen, typically in a pre-arranged sequence. Create a new presentation. First of all, open PowerPoint. In the left pane, select New. Select an option. To create a presentation from scratch, select Blank Presentation. To use the prepared design, select one of the templates. Add a slide. In the thumbnails on the left pane, select the slide you want your new slide to follow. In the Home tab, in the Slides section, select New Slide. In the Slides section, select Layout and then select the layout you want from the menu. Adding or formatting text. Place the cursor inside the text box and type something. Select the text and then select one or more options from the font section of the Home tab, such as font, increase font size, decrease font size, bold, italic or underline, etc. If you want to create bulleted or numbered list, then select the text and select bullet and numbers. Adding a picture, shape and more. Go to the Insert tab. To add a picture in the Image section, select Pictures. In the Insert Picture Form menu, select the source you want. Browse for the picture you want, select it and then select Insert. To add illustrations, in the Illustrations section, select Shapes, Icons, 3D models, Smart Art और Charts, etc. अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि पावर पॉइंट पे एक प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले हमने अपनी पावर पॉइंट को ऑन करना है। ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास न्यू टैब की ऑप्शन अपीयर होगी, हमने इसको क्लिक करना है। हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स खुल जाएंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन या प्रिपेयर डिज़ाइन। ये आपकी मर्जी है कि आपने ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनानी है या प्रिपेयर डिज़ाइन यूज़ करने हैं। हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि हमने कोई न्यू स्लाइड कैसे ऐड करनी है। होम टैब में हमारे पास ये स्लाइड्स के पोर्शन में न्यू स्लाइड्स की ऑप्शन आएगी, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी। इस स्लाइड का लेआउट चेंज करने के लिए हम लेआउट टैब में जाके अपनी मर्जी का लेआउट सेलेक्ट करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमने ऐड या फॉर्मेट टेक्स्ट कैसे करना है। सबसे पहले हमने टेक्स्ट बॉक्स में जाके उस पर कुछ लिखना है, उसको सिलेक्ट करना है और उसका फॉन्ट अपनी मर्जी के मुताबिक सिलेक्ट करना है। सिमिलरली हम इसका साइज भी फॉन्ट साइज बार से चेंज कर सकते हैं। हमने कलर चेंज करना हो तो हम इधर कलर बार में जाएंगे और अपने फेवरेट कलर सेलेक्ट कर लेंगे।
सिमिलरली हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड या इटैलिक या अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमने पिक्चर्स, 3D इलस्ट्रेशन वगैरह कैसे ऐड करनी होती हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास पिक्चर्स की ऑप्शन आ रही है, इस पे हम क्लिक करेंगे। आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, दिस डिवाइस, स्टॉक इमेजेस और ऑनलाइन पिक्चर्स। आपके पास जिस सोर्स में इमेजेस हैं आपने वो सिलेक्ट करना है। अपनी मर्जी की इमेज सेलेक्ट करके इंसर्ट का बटन दबा देना। हमारे पास पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। हम अपनी पिक्चर का साइज छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। अगर हमने अपनी पिक्चर को बॉर्डर्स वगैरह देने हैं तो हम अपनी मर्जी से उसके बॉर्डरिंग भी कर सकते हैं, या पिक्चर को इफेक्ट्स या लेआउट्स सब कुछ हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर हमने इसके अलावा कुछ और ऐड करना हो तो भी हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। इसमें हमारे पास टेबल्स की भी ऑप्शन आ जाती है। कोई हमने शेप्स, आइकन्स, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट्स या चार्ट, कमेंट्स या टेक्स्ट बॉक्स, हेडर और फुटर, वर्ड आर्ट एंड मैनी मोर थिंग्स। हम शेप्स ऐड करके दिखा देते हैं। शेप्स के ऑप्शन में जाएंगे, अपनी फेवरेट शेप सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके कर्सर को ड्रैग कर देंगे, शेप भी इंसर्ट हो जाएगी। अब अगर आपने अपनी स्लाइड्स का लेआउट चेंज करना है तो डिज़ाइन टैब में जाना है, अपने मर्जी का थीम सेलेक्ट करना है और उसको ऐड कर देना। Now we will have a look on the types of presentations. There are basically 5 types of presentations: informative presentations, instruction presentations, arousing presentations, persuasive presentations, and decision-making presentations. Informative presentations. These presentations are brief, to the point. They generally stick to the facts and avoid complicated information. For example, it includes university lectures, school classes, and research results, etc. इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन वो प्रेजेंटेशन की टाइप है जिसमें आप अपनी ऑडियंस के साथ कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत कोइंसाइज होनी चाहिए और इसको बनाते हुए आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन बहुत डीपली ना हो। इंस्ट्रक्शनल प्रेजेंटेशन, these presentations give specific directions or orders. It is designed to teach something completely new to the audience. For example, it includes tutorial classes, safety demonstrations, and instructional videos. ये इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन से रिलेटेड होती हैं, लेकिन इसमें आपके फैक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं जिसमें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जैसे इसमें वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग सेशंस वगैरह इंक्लूडेड होते हैं ताकि आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकें। Arousing presentations. A presentation designed to make the audience consider the topic or discussion, to rouse interest and emotions, to make audience receptive. For example, it includes debates, church sermons, or motivational speeches, etc. Persuasive presentations. To make listeners accept or agree with the presenter's proposal. For example, it includes political debates or business proposals, etc. लोगों की प्रॉब्लम्स को इसमें आप सॉल्व करते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेकर जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है या इस प्रोडक्ट से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। Decision making presentations. A presentation designed to convince the listener to act on the presenter's proposal, usually by giving evidence and pointing out what can happen if this is not done. For example, it includes business meetings, bank promotions, and law discussions in government, etc. इसमें आप एक मीटिंग अरेंज करते हैं जो कि बिजनेस लेवल पर भी हो सकती है या गवर्नमेंट लेवल पर भी हो सकती है, या फिर आप वो मीटिंग ऑल हैंड भी हो सकती है। इस मीटिंग में आप ये सोचते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम है आप उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। व्यू आइकन्स ऑन पावरपॉइंट. There are 2 types of view icons: presentation views and master views. Presentation views include
normal view, outline view, slide sorter view, note pages, and reading views. Normal view. This is the view that you see when you first start PowerPoint, and it has thumbnails on the left, the main slide in the middle, and a note area at the bottom. Outline view. Here you get to see an outline of the slide structure in the left hand navigation pane instead of thumbnails. Slide sorter. Slide sorter view sets all the slides out on a screen so that you can see how they look as a whole and apply transition effects and design changes to the whole presentation at once. Note pages. Here you can see just the speaker notes with the thumbnail of the slide they belong to. Reading view. Reading view allows you to view the presentation as if it were being presented. व्यू आइकन्स को समझने के लिए हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सबसे पहले आपने व्यू टैब में जाना है। जब भी आप पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे तो आपके पास नॉर्मल व्यू खुलेगा। ये नॉर्मल व्यू की ऑप्शन है। इसके साइड पे थंबनेल्स है, मेन स्लाइड मिडल में है और इसके नीचे नोट एरिया है जहाँ पर आप अपने कोई भी स्पेसिफिक नोट्स टाइप कर सकते हैं। अब आउटलाइन व्यू को देख लेते हैं। आउटलाइन व्यू को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक व्यू खुल जाएगा। यहाँ पर आप अपने स्लाइड स्ट्रक्चर की आउटलाइन देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे। अब इसमें पिक्चर्स नहीं अपेयर होंगी, आपकी जो स्लाइड का मेन कंटेंट या हेडिंग्स वगैरह हैं उसके अंदर जो कंटेंट है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ओपन होगा। स्लाइड सॉर्टर व्यू देख लेते हैं। ये आपके पास स्लाइड सॉर्टर व्यू है। इसमें आपकी सारी स्लाइड्स एक साथ आपके पास अपेयर हो गई हैं। इनमें आप चेंजेस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं या डिज़ाइन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। उसको करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सारी स्लाइड्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रांजिशन टैब में जाके आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी ट्रांजिशन सेलेक्ट कर सकते हैं तो वो अप्लाई हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं नोट पेजेस व्यू। ये नोट पेज व्यू है। इसमें आपके पास एक स्लाइड ओपन हो गई है। इसके नीचे अगर आपने कोई भी नोट्स ऐड करने हैं तो वो आपके पास अपेयर होंगे। सिमिलरली रीडिंग व्यू हम करेंगे क्लिक तो ये हमें प्रेजेंट कर देगा हमारा प्रेजेंटेशन को। Now we will have a look on master views. There are three types of master views: slide master, handout master, and note master. Slide master. A slide master is the top slide in the hierarchy of the slides that stores information about the theme and slide layouts of the presentation, including the background, color, fonts, effects, placeholder sizes, and positioning, etc. To create a master slide, on the View tab, click Slide Master. स्लाइड मास्टर व्यू को समझने के लिए हम सबसे पहले व्यू टैब में आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास स्लाइड मास्टर की ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास एक मेन स्लाइड है और इसके नीचे इसकी सब स्लाइड्स हैं। ये देखें जहाँ पर 1 का पॉइंट लिखा हुआ है इसका मतलब है ये हमारी मेन स्लाइड है और इसके नीचे ये इसकी सब स्लाइड्स हैं। इन सब इसका मतलब इस स्लाइड मास्टर का मकसद ये है कि आप अगर अपनी मेन स्लाइड पे कोई भी चेंजिंग्स करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने कलर चेंज किया, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज किया, फ़ॉन्ट का साइज भी चेंज कर दिया, जो जो इफेक्ट्स हम अपनी फर्स्ट स्लाइड पे देंगे यानी मास्टर स्लाइड पे वही चेंजेस हमारे पास हमारी सब स्लाइड्स में भी हो जाएंगी। यहाँ पर आपको साइड पे शो हो रहा होगा जो चेंजिंग्स हमारे पास हो रही हैं। अब जब हमने स्लाइड मास्टर व्यू ओपन किया तो हमारे पास ये नया टैब ओपन हो गया। इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाती है एडिट मास्टर की। इसमें इंसर्ट स्लाइड मास्टर की ऑप्शन आ रही है। ये तो हमारे पास फर्स्ट स्लाइड मास्टर है। इसके बाद अगर हमने कोई नया स्लाइड मास्टर इंसर्ट करवाना है तो इसको क्लिक करेंगे। ये नीचे हमारे पास एक नया स्लाइड मास्टर इंसर्ट हो गया। इसमें हम नई चेंजिंग्स और नए इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अब इंसर्ट स्लाइड लेआउट की ऑप्शन आ गई। हमने कहीं भी स्लाइड लेआउट इंसर्ट करवानी है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और हमारी लेआउट इंसर्ट हो जाएगी। इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं। अब हम मास्टर लेआउट टैब में आ जाते हैं।
इसमें हमारे पास ये ऑप्शन है, मास्टर लेआउट, इंसर्ट प्लेस होल्डर, टाइटल एंड फुटर। हमें मास्टर लेआउट की ऑप्शन शो नहीं हो रही, वो इसलिए क्योंकि हम मास्टर स्लाइड पे नहीं है। ये है स्लाइड मास्टर। इधर हम जाएंगे, हमें मास्टर लेआउट की ऑप्शन शो हो जाएगी। इसका मकसद प्लेस होल्डर्स इंसर्ट करवाना, हाइड करवाना या रिमूव करवाना है। यानी टाइटल, टेक्स्ट, डेट, स्लाइड नंबर और फुटर हमने हाइड करवाने हैं तो हम इन टिक्स को रिमूव कर देंगे। अगर हमने शो करने हैं तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। फॉर एग्जाम्पल टाइटल का टिक हम रिमूव करके देखते हैं कि हमारे पास क्या चेंजिंग्स आती हैं। ये देखें, हमारे पास हमारा टाइटल हट गया। ये हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है, इस वजह से हम इसको वैसे ही कर देंगे। उसके अलावा हम थीम्स भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी थीम इधर से सेलेक्ट कर लें। लेट्स सपोज ये वाला थीम सेलेक्ट कर लिया, तो ये सब स्लाइड्स पे भी हमारा थीम चेंज हो गया। ठीक है, इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये कलर चेंज हो गया। सिमिलरली हम फॉन्ट भी चेंज कर लेंगे, इफेक्ट्स भी ऐड कर लेंगे, बैकग्राउंड स्टाइल भी अपनी मर्जी का ऐड कर लेंगे ताकि हमारी स्लाइड बहुत खूबसूरत लगे। बैकग्राउंड स्टाइल भी इंसर्ट कर लिया। स्लाइड का साइज, दो स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं स्लाइड के। एक स्टैंडर्ड होता है, एक वाइड स्क्रीन होता है। ये हमारी ऊपर है कि हमने कौन सा साइज सिलेक्ट करना है अपनी स्लाइड का। अब हमारे पास इधर इंसर्ट प्लेस होल्डर्स की ऑप्शन आई है। ये हमारे पास सब स्लाइड्स की ऑप्शन होती है। मास्टर लेआउट वाली ऑप्शन सिर्फ मास्टर लेआउट के लिए होगी और इंसर्ट प्लेस होल्डर वाली ऑप्शन हमारे पास सब स्लाइड्स के लिए होगी। जिन जिन स्लाइड पे हमने चेंजेस करवानी है उस पर हम करवा देंगे। इंसर्ट प्लेस होल्डर वाली ऑप्शन का भी यही सिस्टम है। कोई भी चीज़ हम सेलेक्ट करेंगे और उसमें इंसर्ट का बटन क्लिक कर देंगे तो हमारे पास इंसर्ट हो जाएगी। सिमिलरली टाइटल एंड फुटर्स भी हम हाइड करवा सकते हैं। Handout Master. The Handout Master tab is used to edit the appearance of presentation handouts, including the layout, headers and footers, and backgrounds. Changes made in Handout Master appears on all the pages of printed handouts. Handout Master टैब को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको क्लिक करेंगे। हमारे पास एक पेज ओपन हो गया। अब ये पेज ओपन हो गया है, इसको देख के आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये जो पेज है इसका क्या मकसद है। इसमें ना तो हमें कोई स्लाइड नज़र आ रही है, ना इसकी कोई थीम वगैरह नज़र आ रही है। तो बेसिकली इसका मकसद ये है कि हमने कौन कितनी स्लाइड्स पर पेज प्रिंट करवानी है। ये प्रिंटिंग के लिए बेसिकली यूज़ होते हैं हैंडआउट मास्टर टैब। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास स्लाइड्स पर पेज की ऑप्शन आ रही है। इधर जाके हम अपनी मर्जी के मुताबिक स्लाइड सेलेक्ट कर लेंगे कि कितनी स्लाइड हमने पर पेज प्रिंट करवानी है। सिमिलरली हमने हेडर्स, फुटर्स, डेट और पेज नंबर ऐड करना है या नहीं करना। थीम्स अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें सेलेक्ट नहीं होंगे क्योंकि ये स्लाइड्स नहीं हमें रिप्रेजेंट करवा रहा। हाँ, लेकिन बैकग्राउंड स्टाइल हमारे पास चेंज हो जाएगा। ये जैसे ये बैकग्राउंड स्टाइल हमने सेलेक्ट किया तो ये हमारे पास पूरे पेज का बैकग्राउंड आया, पर स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ बल्कि पूरे पेज का बैकग्राउंड चेंज हो गया। इसको हमने देखना है अगर चेंजिंग इसकी किधर हुई हैं तो फाइल में जाएंगे, प्रिंट वाले ऑप्शन में जाएंगे। अब जो हमने सेलेक्ट की थी ऑप्शन 4 स्लाइड्स पर पेज, उसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह ओपन हो जाएगा। जो जो चेंजेस हमने पीछे की थी वही चेंजिंग जिसमें हो गई हैं। इसके बाकी के पेजेस भी ये देखें ऐसे शो हो जाएंगे। Note Master. In Note Master view, you can choose the design and layout of the note page, format the background, modify fonts, and position headers and footers. You can also select page setup options. Click the View tab on the ribbon and click the Note Master button. नोट मास्टर व्यू को समझने के लिए हम नोट मास्टर में जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास अपनी मेन स्लाइड आ गई है। इस स्लाइड पे कोई भी चेंजेस करने के लिए हम इस नोट मास्टर को यूज़ कर लेते हैं। सिमिलरली अगर हमने हेडर्स, फुटर्स, स्लाइड इमेज, बॉडी, पेज नंबर,
या डेट वगैरह ऐड करवानी है या नहीं करवानी, या हाइड करवानी है और रिमूव करवानी है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली बाकी चेंजेस भी वैसे ही होंगी जैसे हमने पीछे हैंडआउट मास्टर में या स्लाइड मास्टर व्यू में देखी हैं। Thank you very much for your concentration. I hope you guys did well understood.